موت آنے سے پہلے توبہ کر لے، لیکن بندہ کہتا ہے کل کروں گا، کر لوں گا، ابھی تو بڑا جینا ہے، یہی کہتے کہتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اس کی رات قبر میں آ جاتی ہے۔ چوریاں تم نے کی ہوں، گالیاں تم نے دی ہوں، بد نگاہیاں تم نے کی ہوں، بدکاریاں تم نے کی ہوں، ملاوٹیں تم نے کی ہوں۔ پچھلی امتوں کو بعض گناہوں سے توبہ کرانے کے لیے اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کر دینے کا حکم تھا، اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں، اور ان کے جرموں کی سزا بنی اسرائیل پر 70,000 کے قریب تقریباً لوگ ایسے تھے کہ جن کو کہا گیا تمہاری توبہ ہی ایسے قبول ہوگی۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حمد و صلات کے بعد عزیزان محترم، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، غلط طریقوں سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ وہ مال کھانے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہو، وہ تجارت ہو، ایسی تجارت عن تراض منکم جس پر تم آپس میں راضی ہو، باہم رضامندی اس میں متعاقدین کی ہونی چاہیے، سیلر اور پرچیزر۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور جو ظلم زیادتی سے ایسا کرے گا، جس سے اللہ نے منع کیا ہے پیچھے، جو ظلم سے یا زیادتی سے ایسا کرے گا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو پھر ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ اللہ کے لیے عذاب دینا، جس طرح رحم فرمانا اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، تو آگ میں ڈالنا، ایسی آگ جو دلوں کو جلا کر رکھ دے، جو بجھنے والی نہیں ہے۔ دنیا کی آگ تو جھلسا کر کام تمام کر دیتی ہے، انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، سینس لیس ہو جاتا ہے، درد کا احساس بھی ختم، پھر اس کو کاٹ دو، اس کو ادھیڑ دو، اس کو جس طرح مرضی اس کی سرجری ہوتی ہے، ایک حد تک وہ برداشت کرتا ہے، اس کے بعد وہ کومے میں چلا جاتا ہے۔ اور آپ نے کئی امراض میں ایسے مریضوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کی سینسز بحال رہتی نہیں ہے، تو انکانشیس ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ سلسلہ نہیں ہونا، انکانشیس نہیں، وہاں کانشیس ہی رہنا ہے، اور ہر لمحے جدید کھال چڑھائی جانی ہے، ہر لمحے جو ہے وہ عذاب، نئے سے نیا عذاب اور سخت سے سخت عذاب جو ہے وہ دیا جائے گا جہنمیوں کو، مجرموں کو۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین ہمیں بالخصوص مسلمانوں کو حلال اور حرام میں فرق کرنے کی تمیز جو ہے اس کے بارے میں ہمیں ارشاد فرما رہا ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے، جو بندہ جو بھی کام کر رہا ہے حلال، وہ دنیا میں بیسیوں کام ہیں، کسی کو کوئی پسند ہے، کسی کو کوئی پسند ہے، کسی کو کچھ مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے، کوئی کچھ شوقیہ کر رہا ہے، کوئی کچھ ایسا ہے جو شوقیہ کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر پا رہا، وسائل ہی نہیں ہیں۔ تو کئی ایسے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ اس سے راضی نہیں ہیں، وہ نہ چاہتے ہوئے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال جو کام کر رہا ہے، مرد کر رہا ہے یا عورت کر رہی ہے، تو
उसे बातिल तरीके से बचना है, हराम से बचना है और हलाल ही का कसब करना है। ये इस पर बहुत ज़ोर दिया गया है, बहुत सारी कुरान मजीद में आयात हैं। तो हमें हलाल और हराम में फ़र्क करने का कहा जा रहा है। अल्लाह फरमाता है कि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है, खुलिक़ल इंसान दईफ़ा, इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है, हर चीज़ का असर जल्द कबूल कर लेता है, जल्द कबूल कर लेता है। और फरमा रहा है कि हराम कमाइयों से बचो कि हराम खाकर तुम्हारे दिल सियाह हो जाएंगे, तुम्हारे दिल जंग आलूद हो जाएंगे, सियाह हो जाएंगे, क्योंकि तुम कमज़ोर हो। हलाल रोज़ी खाओ ताकि तुम्हारे दिलों में नूर पैदा हो। हलाल रोज़ी का नतीजा क्या होगा कि दिल में अल्लाह नूर पैदा फरमाएगा। जब नूर पैदा होगा, अक़वाल भी नूरानी होंगे और अफ़कार जो हम सोचते हैं वो भी नूरानी होंगी, फासिद ख़यालात नहीं आएंगे। फिर आमाल भी हमारे क्या होंगे, वो नूरानी ही होंगे, रूहानी होंगे। उलमा फरमाते हैं कि हर किस्म का माल खाने वाला, हर किस्म का, जहाँ से मर्जी आए, फरमाया हर किस्म का माल खाने वाला कुत्ते से भी बदतर है। ये अब वो शख्स जो हराम की जिसे लत पड़ी हुई है, वो उसके लिए ये बात है जो उलमा फरमाते हैं कि हर किस्म का माल खाने वाला, यानी जिस तरीके से भी आया है वो खाने वाला कुत्ते से भी बदतर है। क्यों? कहते हैं कुत्ता तो सूंघ कर, पहले सूंघता है फिर मुंह में डालता है कि क्या चीज़ खाने वाली है और क्या नहीं है। ये हराम खाने वाला बगैर तहकीक के जो आए खा लेता है, तो फिर कुत्ते से बदतर हुआ या ना हुआ। तो अज़ीज़ान मोहतरम, क्योंकि माली मुश्किलात से बचना, माली मुश्किलात में जो हराम के हवाले से चीज़ें होती हैं इससे बचना मुश्किल होता है, इसलिए अल्लाह जब अहकाम इरशाद फरमाता है तो फिर खिताब का अंदाज़ बदलता है। अल्लाह प्यार वाला अंदाज़ अपनाता है, ईमान वालो, ए वो लोगों जो मेरे हो चुके हो। वैसे तो सभी अल्लाह के हैं, लेकिन जिन्होंने ईमान जो है वो लाए, इस्लाम कबूल कर लिया, ईमान पर राज़ी हो गए, तो उनको पहले प्यारा खिताब अल्लाह इरशाद फरमाता है और फिर आगे जो बात होती है वो अल्लाह इरशाद फरमाता है ताकि इनके लिए मेरे हुक्म पर अमल करना आसान हो जाए, इसको कोई बोझ ना समझें। आज जितने भी लोग मुल्हिद हो रहे हैं, सेकुलर हो रहे हैं, लिबरल हो रहे हैं, ठीक है, ये सारे इस वजह से हैं कि ये दीनी मालूमात से महरूम लोग हैं, कुरान और हदीस से महरूम लोग हैं। इसीलिए ये चाहते हैं कि हमें किसी मज़हब की कोई पाबंदी की ज़रूरत नहीं है। हलाल हराम, जायज़ नाजायज़, जैसे मर्ज़ी हम अयाशी करें, जैसे मर्ज़ी अपनी शहवात को पूरा करें, हमें किसी मज़हब की, किसी खुदा की, किसी किताब की कोई पाबंदी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब का जो लुब्बे लुबाब मैंने आपको बता दिया। ये जो लोग लिबरल होते हैं, ये जो लोग सेकुलर होते हैं, वो यही कहते हैं कि हर बंदे की अपनी मर्जी है, जो वो करना चाहे, जो उसके दिल में आए वो करे। अगर बंदा चाहता है कि बंदे से शादी करे तो करने दो, औरत चाहती है कि वो बंदे की बजाय औरत से शादी करे तो करने दो। हमें नहीं मज़हब की पाबंदी चाहिए, ये हलाल ये हराम नहीं, जो हाथ में आएगा, जो हमें अच्छा लग रहा है हम तो वो खाएंगे। हमने नहीं ये पाबंदियाँ सहनी, हम क्यों पाबंद हों। ये सारे जो मुल्हिद होते हैं, एथीस्ट जितने हैं या ये जो दूसरे हैं, ये इसी वजह से हैं कि कुरानी तालीमात से महरूम लोग हैं। ना इन्होंने कुरान पढ़ा है, ना इन्होंने हदीस पढ़ी है, ना ये सीरत नबवी पढ़ सके हैं, ना ही अच्छे लोगों की सोहबत में बैठ सके हैं। इनको मिले तो दीन बेजार लोग ही मिले जिन्होंने इनका दिमाग और ख़राब कर दिया। तो जिसकी वजह से ये इतनी बेबाकी पर उतर आए कि इल्हाद को इख्तियार किया कि इल्हाद क्या है कि कोई खुदा नहीं है। तो कहते हैं ये आपने खुद घड़ा हुआ है, ये सारे मौजज़े, ये करामतें, ये कहानियाँ घड़ी हुई हैं, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। ये मैन मेड है, ये किताब भी मैन मेड है, ये जो कुरान है माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। बंदा पूछे और मैन मेड किताबें, वो अलिफ ता या तो कोई हिफ्ज़ करके पढ़े और पूरी दुनिया में उसके हाफिज एक जैसा ही पढ़े, ऐसी मैन मेड लाओ ना किताब। लेकिन इन बातों की तरफ नहीं वो लोग आते। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, हराम माल जिन्होंने खाया हो या हराम ही की नस्ल से जिन लोगों के हत्थे वो चढ़ गए हों, तो बताइए हलाली तासीरें आएंगी उनमें? कभी भी नहीं आएंगी। तो इसलिए कहा
مال پر زور کیوں دیا گیا ہے؟ شریعت نے کیوں زور دیا ہے کہ حلال لقمے اندر لے جانے ہیں، حرام نہیں لے جانے، مشکوک مال بھی نہیں لے جانا، جس مال میں شبہ پڑ جائے اس سے بھی بچنا ہے، کہ اللہ نے حلال بھی واضح کر دیا ہے، حرام بھی واضح کر دیا ہے۔ اور مشتبہ مال میں اگر ہم منہ مارو گے نا تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا، تمہاری صورت میں نکلے، فساد کی صورت میں نکلے، بے برکتی کی صورت میں نکلے، بے چینی کی صورت میں نکلے، اضطراب کی صورت میں نکلے، نفرتوں کی صورت میں نکلے، عداوتوں اور قدورتوں کی شکل میں، اور آپس میں قطع تعلقیوں کی صورت میں، فتنہ و فساد کی صورت میں اس کا جو ہے وہ اثرات ظاہر ہوں گے۔ لیکن انسان ہے کہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ تو شریعت نے ہمیں یہ تعلیم کیا ہے، یہ احکامات ہمیں بیان کیے ہیں کہ ہم ناجائز طریقوں کو پہلے سیکھیں تو صحیح کہ ناجائز ہوتا کیا ہے۔ جب سیکھا ہی نہیں ہے تو کیسے دعویٰ کریں گے کہ یہ ناجائز ہے اور یہ جائز ہے؟ سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے جی، ٹائم نہیں ہے۔ مال کمانے کے لیے صبح سے رات تک ٹائم ہے، آدھی رات فلائٹ ہوگی، رات نیند نہیں آئے گی۔ صبح اگر ہماری فلائٹ ہے تو فجر کیا تہجد میں بھی جاگے ہوں گے، پیپر ہیں تو جناب نیندیں بھی اڑ جائیں گی، مووی کوئی آ گئی ہے تو جمائی بھی نہیں آئے گی۔ کسی بزرگ سے کسی نے کہا نا کہ جناب جب ذکر کرتے ہیں تو وہاں جمائیاں آتی ہیں، نیند آتی ہے، اور ایسے کوئی گناہ کی باتیں، گناہ کی محفلوں میں بیٹھے ہوں تو نیند نہیں آتی۔ وہ کہنے لگے پھولوں کی سیج پر نیند آتی ہے، کانٹوں کی سیج پر نیند نہیں آتی۔ پھولوں کی یہ عبادت کیا ہے؟ یہ پھول ہیں کہ ان پر جیسے ہی کوئی آئے گا، خوشبوئیں سونگے گا، اس کو فوراً ہی نیند آنی شروع ہو جائے گی۔ اور یہ جو گناہ کے کام ہیں، گناہ کی گفتگویں ہیں، مجلسیں ہیں، محفلیں ہیں، یہ کانٹوں کی سیج ہے۔ تو کانٹوں کے اوپر کسی کو لٹا دیں، اس کو نیند آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ تو یہ اس سے فرق کر لیں۔ تو عزیزان محترم، ان آیات کا جو میں نے تلاوت کی خلاصہ کیا ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ۔ جیسے جوا کئی ایسے اسلامی ممالک ہیں جو سیکولر بن گئے ہیں کہ ہر بندے کو آزادی ہے، ادھر مسجد، ادھر پب، ادھر کلب، ادھر کیسینو، جس نے جانا ہے چاہے مسجد میں جائے، جس نے جانا ہے شراب کی بار میں چلا جائے، ہر قسم کی شراب اویلیبل۔ مسلمانوں کے ملکوں میں کفار رہ رہے ہوں تو کفار جو پیتے ہیں وہ چھپ چھپا کر کافر ہی اگر بناتے ہوں اور کافر ہی ان سے خریدتے ہوں تو ان کو پرمٹ ملا ہو تو مسلمانوں کو نہیں، کفار کو اجازت ہوگی، لیکن علل اعلان نہیں، سر عام نہیں۔ اور یہاں تو مسلمانوں کی جو گیدرنگ جہاں ہوتی ہیں، جہاں کوئی بڑا جناب کو منصب والا ہے یا اس طرح کے لوگ، تو کئی لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ شراب سر عام چلتی ہے وہاں پر، ڈانس چلتے ہیں، پارٹیاں چل رہی ہیں، بڑے بڑے عنوانات انہیں دیے گئے ہیں اور یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ ناجائز طریقے سے مال نہیں کھانا، جوا ہے، چوری چاہے کہتے ہیں نا لکھ دی ہوئے تو بھاویں ککھ دی ہوئے، چوری تو چوری ہے۔ تو بہرحال بھائی ابھی بیٹھ جائیں، آپ نماز توڑ کے بیٹھ جائیں، جب بیان ہو رہا ہو تو آپ نے سب سے اہم کام اس وقت کیا ہے کہ آپ علم دین سیکھیں گے۔ جب ہم سب سنت پڑھیں گے تو انشاءاللہ سب پڑھیں گے، دیکھنے کی ضرورت نہیں، میں نے دیکھ لیا، اب آپ سب دیکھیں گے تو اس طرح معیوب لگے گا۔ تو جب بیان ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کہ ایک حلقہ ذکر کر رہا تھا مسجد نبوی میں اور ایک حلقہ دین سکھا رہے تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل کو چوز کیا۔ آپ جہاں دین سکھایا جا رہا تھا آپ اس محفل میں جا کر بیٹھ گئے، کیونکہ ذکر کرنے کا یا نوافل پڑھنے کا یا اس طرح رکعت، اس کا فائدہ تو صرف اپنی ذات کو ہے، لیکن دین سیکھنے کا فائدہ اپنے کو بھی ہے اور جس کو جا کے سکھائیں گے اس کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ تو جب مسلمان اجتماعی طور پر، جس طرح اس ٹائم بیان کا ٹائم ہے، پھر سنت کا ٹائم ہوگا، پھر خطبے کا ٹائم ہوگا، پھر جماعت کا ٹائم ہوگا، تو اس سے ہر ٹائم یعنی کہ جس چیز کا ٹائم دیا جائے اس وقت میں وہ عبادت کرنے کی کوشش کیا کیجیے۔ فرمایا چوری ہو، جوا ہو، قتل ہو، لوگ پیسے لے کے قتل کر دیتے ہیں، اس کے بھی علیحدہ ریٹ ہیں۔ جتنی بڑی شخصیت کو اڑانا ہے لوگ بک رہے ہیں۔ کون بک رہے ہیں؟ روبوٹ سے تو قتل نہیں ہو رہے۔ یہ جو ہے ہمارے مفلس لوگ کیا ہوں یا پڑھے لکھے کیا ہوں، جدید طریقے سے بھی قتل کر رہے ہیں، پرانے طریقوں سے بھی قتل ہو رہے ہیں، آلہ جارحہ گنوں سے بھی قتل ہو رہے ہیں، چھریوں سے بھی ہو رہے ہیں، پتھروں سے بھی ہو رہے ہیں، جس کو کچھ نہیں ملتا
वो कोई फंदा लगा लेता है, कोई कपड़ा बांध लेता है, कोई तकिया मुंह पे दे के मार लेता है, और कैसे कैसे अजीब किस्म के नमूने आज हम मुआशरे में ज़ाहिर होते हुए देख रहे हैं। तो ये पैसे लेके कत्ल करना, अब जो पैसे ले रहा है कत्ल करने के लिए वो भी क्या कर रहा है, दोज़ख की आग डाल रहा है अपने अंदर। तो नाच गाना जो नाच कर पैसे लेते हैं, जो उन पर खर्चते हैं और लुटाते हैं, वो भी अपना अगर हलाल माल है तो हराम जरिए पर खर्च कर रहे हैं, और जो ले रहे हैं उनका नाचना ही हराम था। तो जो काम हराम है उसकी उजरत भी हराम होती है। तो ये फरमाया कि जितने भी ज़राए हैं ये नाजायज़ हैं, ये बातिल हैं, और ये खाओगे इन जरियों से माल लेकर तुम्हारे दिल सियाह हो जाएंगे। कोयले को जैसे मर्जी डिटर्जेंट से धोने की कोशिश करो, जैसे मर्जी केमिकल महंगे से महंगा लगा लेना, कोयला नहीं उजला होने वाला। कोयले ने कोयला ही रहना है, उसने घिस घिस कर उसका आखिरी जर्रा भी जो है वो काले कव्वे की तरह काला ही होना है, वो सफ़ेद नहीं हो सकता। तो इसी तरह जो माले हराम से लुकमे खा रहा है, लिबास पहन रहा है, भले वो सफ़ेद लिबास पहन रहा है, अंदर से वो कव्वे की तरह काला ही होगा, और उसको कोई नूरानियत, कोई किसी किस्म की रूहानियत, किसी दुआ, किसी फ़र्ज, किसी नफल, किसी वाजिब, किसी तस्बीह, किसी चिल्ले, किसी रियाजत, किसी फलाही काम, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं होना। हदीसों में है एक लुकमा सिर्फ मुंह में चला जाए ना, पेट में चला जाए, 40 दिन तक तो उसकी दुआ ही नहीं कबूल होती। बंदा कहता है या अल्लाह, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तो रब को रहम नहीं आता उस पर, क्योंकि उसने रब के फरामीन की मुखालफत करके तो हराम लुकमा मुंह में डाला होता है। तो उसका लिबास हराम का, उसकी खुराक हराम की, उसका गोश्त, उसकी हड्डियां, उसका पोस हराम से परवरिश पा रहा है। ये रोज हम ग्रो नहीं कर रहे, रोज हमारा जिस्म जब जो कुछ खाते हैं इसलिए हमारे जिस्म को नहीं लगता, इससे खून नहीं बनता। तो ये क्या होता है, जो हलाल का खाया या हराम का खाया वो अपनी तासीर तो दिखाता है, वो अपने असरात तो जाहिर करता है। लिहाजा ये इतनी अहम बात है कि हमारी शरीयत का बहुत बड़ा पोर्शन इस पर बेस करता है, हलाल और हराम में फ़र्क करके हलाल को अडॉप्ट करना, हलाल को खाने पर। क्योंकि हर काम होना ही पैसे से है। कब्र में उतरना है तो तब भी पैसा चाहिए, दुनिया में आना है तब भी पैसा चाहिए, दुनिया में जीना है तब भी पैसा चाहिए, रब के घर जाना है तब भी पैसा चाहिए, इलाज मुआवजा करना है पैसा चाहिए, तालीम हासिल करनी है तब भी पैसा चाहिए, मस्जिदें बनानी है, मदारिस बनाने पैसा चाहिए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बनानी है पैसा चाहिए। पैसे के बगैर तो कुछ नहीं होने वाला। तो पैसा हलाल का होना ज़रूरी है, बातिल तरीकों से इकट्ठा किया हुआ माल नहीं होना चाहिए। अल्लाह फरमाता है मगर आपस में तुम खा सकते हो, क्या खाओ, कि तिजारत का माल। तिजारत में अगर अल्लाह ने जितने भी हिस्से रखे हैं कारोबार के अंदर, उसमें से 9 हिस्से तिजारत में रखे हैं और 1 हिस्सा दीगर कामों में रखा है। तो फरमाया तिजारत करो, आपस की रजामंदी हो, उसमें एक फरीक को फ़ायदा हो जाए, दूसरा जो है वो घाटे में चला जाए, नुकसान में चला जाए। हर 2 फरीकैन में से हर एक की जो है कोशिश होती है दूसरे का नुकसान हो जाए, मैं बच जाऊं। तो शरीयत ऐसे अक़द से ही मना करती है, वो इजारा हो, वो जनाब बै हो, किसी भी किस्म की वो शराकत हो, मुदारबा हो, मुशारका हो, कुछ भी ऐसा हो, तो शरीयत से मना करती है कि जिसमें एक को फ़ायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है। बाद में क्या होना है कारोबार करने के बाद वो तो अल्लाह को पता है, लेकिन बज़ाहिर जो शराइत तय हो रही होती है, बड़े बड़े जनाब मुआहदे तय होते हैं, MOU साइन हो रहे हैं, भाई मुफ्ती कर रहे हैं, मुफ्ती देते हैं सारा वो आपको, जो उसके जो पर्टिकुलर्स होते हैं कि ये लिखें शिकें, ये क्लॉजेस डालें, ये हलाल हराम, ये हलाल है, ये हराम से बचना है। कोई नहीं, आपस में बैठे तय करें, ए भी शिक पा दो, वो डाल देते हैं, ए भी शिक पा दो, वो डाल देते हैं अंदर, पता ही कोई नहीं हलाल डाली है कि हराम डाली। हमारे कई ऐसे स्टैम्प पेपर हैं जो रोज लिखे जा रहे हैं, रोज लिखे जा रहे हैं, उसके अंदर हराम शिकें शामिल हैं, फासिद शिकें शामिल हैं, और मुआहदे हो रहे हैं, करने वाला भी साइन कर रहा है, करवाने वाला भी साइन कर रहा है, और जो करवा रहा है वो उसकी कमाई भी खा रहा है। तो चलता ही यही है, हमारी कचहरियों में चलता ही है, अदालतों में चलता ही है, चलाई जा रहे हैं। तो वो कौन सी सूरतें हैं, अगर उनको डिस्कस करें तो उसके लिए एक अलग वक्त चाहिए। लेकिन मैंने आपको ज़हन दिया कि भाई अपने मुआहिदों को भी परखें कि उसके अंदर कोई गलत चीज़ शामिल नहीं होनी चाहिए। फरमाया कि तिजारत के ज़रिए से जो माल हासिल होगा वो तुम्हारे लिए हलाल है। और फिर फरमाया कि वला तक़तुलू अनफुसकुम, और आपस में एक दूसरे को कत्ल ना करो। गुस्से पर काबू नहीं है, तैश आ जाता है, जज्बात
काबू में नहीं रहते। वो बच्चा है, जो छोटा सा बच्चा है, जैसे उसको समझ आती है, आप जनाब उसके साथ जो मारने वाला मजाक करते हैं वो आपके आगे से मारता है, वो नहीं देखता मेरा बाप है, दादा है, कौन है। जब आप उसको मारेंगे तो एक्शन का तो रिएक्शन होता है, वो रिएक्ट करता है। आप उसको इज्जत नफ्स को मजरू करते हैं, चार लोगों के अंदर हंसी हंसी में आप फन कर रहे होते हैं, वो आपको रिएक्ट कर रहा होता है और आपको समझ ही नहीं आ रही होती उस टाइम पर। तो ऐसे नहीं करना, उसकी भी इज्जत नफ्स है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी आपने कदर करनी है, तकरीम करनी है, तो जवाब में आपको भी फिर इज्जत इकराम और तकरीम मिलेगी। तो बहरहाल फरमाया कि एक दूसरे को कत्ल नहीं करना। जब गुस्सा काबू में नहीं रहता तो कत्ल तभी होते हैं। ये बात मुझे पसंद नहीं आई, अब मेरे पास दलील नहीं रही, जवाब नहीं रहा, तो लिहाजा क्या करूं, इसको सफ़ा हस्ती से ही मिटा दो। कोई जहर खिला रहा है, कोई गोली मार रहा है, कोई जनाब धक्का दे रहा है, कोई गाड़ियों के नीचे कुचल रहा है, और इतना सस्ता हो गया इंसानी खून, इंसानी जान। फरमाया जिसने एक बंदे को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक शख्स की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो ये हमें इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह फरमाता है एक दूसरे को कत्ल ना करो। क्या मुराद है इससे? इसका वसी मफहूम है। ये भी मफहूम है कि तुम खुदकुशी ना करो। बहुत से लोग मायूसियों में पड़कर, डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का, स्ट्रेस का शिकार होकर, तो और ये इन चीज़ों के शिकार भी क्यों होते हैं? मिजाज के खिलाफ ये काम हो रहा है, मिजाज के खिलाफ ये हो रहा है, मिजाज के खिलाफ ये हो रहा है, दफ्तर में ये हो रहा है, कारोबारी तौर पे ये हो रहा है, अब्बा जी ये कर रहे हैं, अम्मा जी ये कर रही हैं, बीवी ये कर रही है, शौहर ये कर रहा है, वो डिप्रेस्ड हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, एंटी जो है वो डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं, और खाते खाते जब एक दफ़ा वो बेकाबू हो जाते हैं, वो डिप्रेशन का जिन जब बेकाबू होता है, फिर क्या होता है कि ये ख्यालात आते हैं फासिद, ये सोचें आती हैं कि मैं अपने आप को ही मिटा दूं, मेरी वजह से ये हो रहा है, मेरी वजह से। इंसान खुदकुशी करना उसके लिए फिर आसान हो जाता है। कोई दरियाओं में छलांगे लगा रहा है, कोई जनाब जहर पी रहा है, कोई चूहे बार गोलियां खा रहा है, कोई नींद का गोलियों का जो है वो पकड़ के फक्का मुंह में डाल रहा है, और क्या क्या ये बच्चियां कर रही हैं, बच्चे कर रहे हैं, ये मेरी मोहब्बत, ये ना मुझे मिला तो मर जाऊंगी, ये ना हुआ तो ये हो जाऊं। वो फिल्में देख दे, ड्रामे देख देख कर, वो अफसानवी नावल पढ़ पढ़ के ख्यालात की दुनिया में ऐसे दीन से दूर होकर खो जाते हैं कि गोया कि ये ना मिला मुझे हीरा तो न जाने मेरे ज़िंदगी में आने का और पैदाइश का मकसद ही फौत हो जाएगा। फिर वो क्या करता है, इंसान खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो जाता है, तुल जाता है, और समझता है कि मर कर मुझे सुकून आ जाएगा। अरे भाई ऐसा नहीं होने वाला। अब तो घबरा के कह देते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे, और चैन कहाँ पाना है? खुलूद फिल जहन्नम, हमेशा, यानी मुद्दतों मुद्दतों, कितनी मुद्दत। वो रब जिसने जहन्नम बनाई है, उस रब ने जो क़यामत का एक दिन बनाया है वो एक 50,000 साल का दिन है, एक दिन। तो मुद्दतों जिसने रहना है जहन्नम के अंदर, हराम मौत मरकर, अगर खुदकुशी को हलाल समझकर मरा तो फिर तो वो निकलने वाला ही नहीं है जहन्नम से। वो तो फिर हलाल कतई को जो हराम जानता है और हराम कतई को जो हलाल जानता है, दोनों सूरतों में वो काफिर है। जो काफिर होकर मरेगा उसने कहाँ निकलना है, वो तो नहीं निकलने वाला जहन्नम से। और लेकिन जिसने हलाल नहीं जाना, वैसे मजबूर, पता है उसे हराम है, कबीरा गुनाह है, ये हराम मौत, फिर भी वो कर गुजरा कि मेरी जान छूट जाए यहाँ से, तो वो भी जहन्नम में जाएगा और मुद्दतों रहेगा। मुद्दतों, कितनी मुद्दत, अल्लाह जानता है कि वो कितनी देर जहन्नम में रहेगा, कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी। तो फरमाया कि अपनी जानों को कत्ल ना करो से मुराद एक तो ये है कि वैसे एक दूसरे को अदावत में कत्ल ना कर दो। दूसरी सूरत है कि खुदकुशी ना कर लो, कि अपनी जान जो है वो खुद ख़त्म कर लो। और इससे ये भी मुराद है कि ऐसे जुर्म ना करो जिसकी सज़ा में कत्ल कर दिए जाओ। ऐसे जराइम करते हैं ना लोग जिसकी सज़ा में कत्ल कर दिए जाते हैं, जैसे जिना है, बदकारी, डकैती है, और ना हक खून किसी का बहा दिया। और फिर फरमाया इससे ये भी मुराद है कि माल की हवस में फिर ऐसे मुल्क ना चले जाओ तिजारत करने जहां तुम्हारी जान को खतरा हो। लोग कह रहे होते जी हिजरत है, हिजरत है। भाई अपनी अपनी डेफिनेशन बना ली है हिजरत की। दारुल इस्लाम के अंदर आपकी ऑक्सीजन कम पड़ गई है, जो आपको दारुल कुफर में जाना पड़ रहा है कि जनाब हिजरत है। हिजरत पहले जो है वो उसका मफहूम तो समझिए कि हिजरत किसे कहते हैं। तो हिजरत तो ये भी है कि गुनाह को छोड़कर इंसान नेकी की तरफ जो है वो रुजू कर ले, ये भी हिजरत है। लेकिन हिजरत जो है वो एक वो हुई जो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की, और एक हिजरत वो है कि जनाब जहाँ पर इंसान
भले मुसलमानों के मुल्क में रहता हो, वो अपने दीनी मामलात को आसानी से अदा नहीं कर पा रहा। एक मोहल्ले में रहता है, वहाँ शरीरों के संगम में उसको जो है जगह मिल गई है और वहाँ पर वो अपनी इबादत नहीं सही अदा कर पा रहा, वहाँ पर वो सुकून से रह नहीं पा रहा, तो लिहाजा उसे वहाँ से हिजरत कर जानी चाहिए। कहीं पर जनाब वो इबादत के लिए जो मस्जिद प्रॉपर मुयस्सर नहीं है, ये मस्जिद तो है, अंदर जनाब शुरूर व फितन का अंबार है कि सियासत ही सियासत, फितने ही फितने और फसादात हैं, और वो बंदा वहाँ नमाज ही नहीं पढ़ सकता। यहाँ मस्जिद तो है, इमाम भी है, इमाम शरीर है, या इमाम में वो जो है शराइत नहीं है इमामत की, किरात गलत है, मसाइल गलत हैं, और ऐसा काबिज है किला ठोक करके जनाब मुझे यहाँ से कोई निकाल के दिखाए तो सही, ज़बा हो जाऊंगा, निकलूंगा नहीं यहाँ से। ऐसी जगह भी होती हैं, तो ऐसी जगह पे हो वहाँ से भी इंसान जो है वो हिजरत करके किसी और जगह चला जाए जहाँ पर नमाज तो 5 वक्त की सही पढ़ सके, ये भी हिजरत है। लेकिन हलाल ज़राए जब आपके मुल्क में मौजूद हैं तो बिला वजह एक रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखते हुए जनाब ब्राइट फ्यूचर, चाहे बाद में पैक होकर आना पड़े वहाँ से, वहाँ पर जनाब मैयत जब वापस आती है तो जिस्म के हर हिस्से के अंदर वो जो हनूत करते हैं ना जब बॉडी को, तो कोई हिस्सा ऐसे छोड़ते नहीं जिसके अंदर वो केमिकल डाल के उसके अंदर इंजेक्ट नहीं करते। तो फरमाया कि इतनी अजियत जो सहनी है तो यार अपने वारसों को वसीयत कर देना, मैं मर जाऊँ ना जहाँ वहीं दफना दें, मुझे यहाँ ना बुलाएं। एक तो पोस्टमार्टम कोई ना कराए, और दूसरा जो है वो जब कहीं उसका विसाल हो ही जाए तो वो वहीं पर जो है, वहाँ की मिट्टी भी अल्लाह की पैदा की हुई है और यहाँ की मिट्टी भी अल्लाह की पैदा की हुई है, और रूहों ने वहाँ पहुँच जाना है, एड्रेस नहीं भूल जाएगा कोई हशर में, अल्लाह ताला पहुँचा देगा उसको। तो लिहाजा ये अमल भी ना करे। लेकिन कहा गया कि बिला वजह ऐसे जाकर दूसरे मुल्क में ना जाए जहाँ उसकी जान को खतरा हो, वहाँ पर उसको मौत आ जाए। कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसी स्टेट्स हैं दुनिया में जहाँ पर जो है वो अपने हम वतनों को नहीं बख्शते। तो मुसलमानों के खिलाफ तो बहुत सारी कुव्वतें पूरी दुनिया में काम कर रही हैं जो मुसलमानों से नफरत करती हैं। मुसलमान तो 1.5 अरब के करीब हैं और बाकी 6.5 अरब जो हैं वो तो नॉन मुस्लिम हैं, और उनके अंदर सारे ऐसे नहीं होते जो मुसलमानों से नफरत करते हों, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें तासुब है, असबियत है, जहालत है, वो एक आंख नहीं भाता उनको मुसलमान। तो ऐसी जगहों पर जाकर वहां अपने आप को, जब अगर तुम मर जाओगे तो गोया कि तुमने अपने आप को खुद ही मार लिया है, तुम्हें कोई उठाकर तो नहीं वहां ले गया, तुम खुद ही वहां पर गए। इस नाम पर मेरी तकदीर है, मेरा खाना पीना वहां है, मेरा दाना पानी वहां है, दाने पानी जो है वो खुद ही शिफ्ट करता है इंसान कि जनाब वहाँ जाके मुझे मिलेगा, यहाँ तो मिल नहीं रहा, यहाँ तो मैं भूखा मर रहा हूँ। तो लिहाजा ऐसी जगह पर जाकर किसी की फिर मौत होती है तो वो फिर अपने आप को कोसे, किसी और को ना कोसे, उसको भेजने वाले भी, और वो भी जो है वो तो चला गया, वो अब क्या कोसेगा। यहाँ फरमाया कि अपने आप को हलाक करने का ये भी माना है कि गुनाह और मासियत करके, नाफरमानी करके, हराम माल खाकर अपने आप को कत्ल और हलाक और मुस्तहिके अजाब ना बना लो, ये भी अपने आप को मारने के मुतरादिफ है। अल्लाह ने ये नर्मो नाजुक जो जिस्म दिया है, ये नाज नखरे जिसके सारा दिन हम जो है उठाते रहते हैं, ये इसलिए नहीं तुम्हें दिया अमानत के तौर पर कि इसको इस्तेमाल करते हुए, इसको सवारी बनाकर, इस पर सवार होकर, इससे ऐसे काम जिंदगी में करके अल्लाह की बारगाह में आओ कि ये जहन्नम में जाने के काबिल हो जाए। चोरियां तुमने की हों, गालियां तुमने दी हों, बदनिगाहियां तुमने की हों, बदकारियां तुमने की हों, मिलावटें तुमने की हों, और सूद और रिश्वतों के लेन देन तुमने किए हों, और जनाब कत्लो गारत फसादा तुमने फैलाए हों, साजिशें और जनाब फितने फैलाए हों, और ये कर कर आके वहां पर आओ, तो फिर ये अपने आप को दुनिया में सजा ले ली और वहाँ की सजा अलहदा है, कब्र की सजा अलहदा है, तो ये भी अपने आप को हलाक करने के मुतरादिफ है। फिर अल्लाह फरमाता है अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है, इसलिए तुम्हें मौत से बचने का हुक्म इरशाद फरमा रहा है। पिछली उम्मतों को तो बाज़ गुनाहों से तौबा कराने के लिए अपने आप को मौत के लिए पेश कर देने का हुक्म था, अपने आप को कत्ल के लिए पेश करें, और उनके जुर्मों की सजा बनी इसराइल पर 70,000 के करीब तकरीबन लोग ऐसे थे कि जिनको कहा गया तुम्हारी तौबा ही ऐसे कबूल होगी कि अपने आप को कत्ल के लिए पेश करो, और फिर उनके अजीज़ों को कहा गया कि अब इनको जो है कत्ल करना शुरू कर दो, और आंखें नहीं खोलनी, और ये नहीं देखना कि ये मेरा चाचे का बेटा है, मेरे मामू का बेटा है, मेरी खाला का बेटा है, नहीं, हुक्म था कि काटी जाओ इनको, और सुबह से शाम तक 70,000 के करीब जो बनी इसराइली जो हैं वो मारे गए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक।
اور پھر بعد میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر اور عرض کرنے پر اللہ رب العالمین نے اس کو وہیں تک جو ہے وہ سٹاپ کر دیا کہ اب اس کے علاوہ باقیوں کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی۔ تو پہلے تو ایسا ہوتا تھا، تو آج جو ہے کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے وہ رب کہ ایک تو گناہ جو ہے وہ چھپا کے رکھتا ہے۔ پچھلی قوموں میں کوئی گناہ کر دیتا، اگلے دن صبح اس کے دروازے پہ باہر لکھ دیا جاتا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، وہ شرمندہ ہوتا، رسوا ہوتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارے گناہ کس نے کتنے کیے ہیں، ایک کلف کا سوٹ پہنتے ہیں سارا کچھ اندر ہی چھپ جاتا ہے، ایک ویسٹ کوٹ کے نیچے، ایک کوٹ کے نیچے، ایک جناب ہمارے پف کے نیچے کتنی کتنی چیزیں چھپ جاتی ہیں، ہم چھپانے میں ماہر ہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ ہمارے گناہ چھپے ہوئے ہیں، وہ مہلت دیتا ہے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا، جب تک جان کنی کا تیرے پہ وقت نہیں آیا، غرغرہ موت آنے سے پہلے توبہ کر لے۔ تو زمین سے لے کر آسمان تک گناہ لے کر آئے گا، شرک نہ کیا ہوگا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن بندہ کہتا ہے کل کروں گا، کر لوں گا، ابھی تو بڑا جینا ہے۔ یہی کہتے کہتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اس کی رات قبر میں آ جاتی ہے اور وہ جو ہے مہلت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر تم ایسا نہیں کرو گے، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقوں سے کھاؤ گے، تو پھر ہم تمہیں ایسی آگ میں داخل کریں گے کہ جس کا عذاب جو ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہے کہ اس کا عذاب کیسا ہوگا۔ خیال رکھو، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی مجرم کو سزا دینا بہت ہی آسان ہے، کوئی اس کی سزا سے نہیں بچ سکتا اور نہ دوسرے کو بچا سکتا ہے۔ اس کی سزا سے بچنے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ چپ کر کے اس کے حکموں پر سر تسلیم خم کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور جتنے باطل طریقے ہیں، ناجائز طریقے ہیں ایک دوسرے کا مال لوٹنے کھسوٹنے کے، اس کو ترک کر دو، اللہ کی رضا پہ راضی رہو، اور اس بات پر اعتقاد مضبوط رکھو کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے نا، 4 ماہ کے تھے، 120 دن کا جب جو ہے وہ مکمل ہوا تھا حمل، تو فرشتہ بھیج کر اللہ نے تمہارا رزق لکھ دیا ہے، جو تمہیں ملنے والا ہے وہ اللہ لکھ چکا ہے۔ اب جناب وہ تمہیں ویسا ہی ملنا ہے، چاہے تم حرام ذریعے سے لو چاہے حلال ذریعے سے لو۔ تو اس پر توکل کرو، اسباب پر توکل نہ کرو، مسبب الاسباب پر توکل رکھو، اسباب کو اختیار کرو لیکن ان سے نتیجے کی امید نہ رکھو، نتیجے کی امید صرف اللہ سے رکھو۔ مؤثر حقیقی فقط اور فقط کون ہے؟ اللہ ہے، مسبب الاسباب ہے، نتیجہ وہ پیدا کرتا ہے۔ لہذا یہ لوگوں کو دیکھ دیکھ کر اس کے پاس زیادہ ہے تو میرے پاس تھوڑا ہے، اس کے پاس اس ماڈل کی گاڑی تو میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ وہاں پہنچ گیا تو میں یہیں رہ گیا، حسد میں، تکبر میں، ریاکاری میں، بغض میں، کینے کے اندر جو ہے مبتلا ہو کر اپنے دل کو سیاہ کیے جا رہے ہو۔ فرمایا جس کے دل میں کسی مسلمان کا کینہ ہوگا، بغض ہوگا، وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ تو یہ چیزیں یہ ہمارے باطنی گناہ ہیں جن کی طرف نہ ہماری توجہ ہے، نہ ہمیں علم ہے، نہ شعور ہے، نہ ہمیں اس کا یقین ہے، نہ ادراک ہے، نہ اسباب کا پتہ، نہ علاج کا پتہ، اور نہ ہی کوئی ذہن ہے جس کی وجہ سے ہم اندر ہی اندر سے گھلی جاتے ہیں اور دیمک کی طرح ہمیں یہ سارے باطنی امراض چاٹ رہے ہیں۔ تو سب سے بڑی اس کی کاز کیا ہے؟ حرام لقمے اندر جاتے ہیں۔ تو لہذا نہ کسی ایسے حرام کمانے والے دوست کے پاس سے کچھ کھائیے، اور نہ ہی جناب خود ایسا کوئی عمل کریں جس سے اللہ کے مجرموں کی صف میں شامل ہونا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے رزق کو اللہ پاک اور پاکیزہ فرمائے اور تمام حرام ذرائع سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔